BSc CSE arena is an ever-evolving space where staying up to date becomes as crucial as maintaining a thorough preparation. With strategic planning and holistic coverage for exam syllabus, Vision IS Delhi presents GS Foundation course. Avail analysis and integration of current affairs with GS syllabus. All India test series with an innovative assessment system, inculcating post-test analysis, discussion, all India ranking, and more. Explore the holistic learning modules intrinsically designed for the ideal aspirant. Good morning, everyone. So, the last part of this series of sessions, where we are discussing regarding the PYQs of environment. So, in the last 3 sessions, so we had covered almost all the major themes. So, in today's session, we'll be discussing the leftover part of these questions. So, I think so there are questions related to energy, sustainable agriculture, and few other terms in use. Okay. So let's go ahead. So we had covered till here, the last part. I was just covering this unconventional source of energy, then agriculture, and then different terms in use. Okay. Okay. HFC का क्वेश्चन हो गया था ना? We covered this HFC also. Okay, page number 198. So this document is there in Visionary's website. You can check that. You can download that. हाँ, यहाँ तक हुआ था. ठीक है. In the context of which one of the following are the terms pyrolysis and plasma gasification mentioned? Pyrolysis and plasma gasification. Extraction of rare earth elements. What is the method of extraction of rare earth elements? Where will you find rare earth elements? कहाँ पर होते हैं? Yes. So rare earth elements, are they actually rare? They're very abundant. They're very abundant, but they're not found in a concentrated manner, and they are found near to the surface, particularly near to the erosional depositional regions. Okay, so for example, near to the coastal region. Okay, so it's not the pyrolysis is not the method of extraction. India के पास में तो बहुत सारे rare elements है, monazite sand है ना. Natural gas extraction methods ये भी नहीं है, और pyrolysis क्यों करेंगे? Okay, so it's a direct extraction.
ओके वेल्स होगा, वहाँ से पंप आउट करो बस. हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल्स, pyrolysis, plasma gasification. It's basically waste. वेस्ट को नॉर्मली हम क्या करते हैं लैंडफिल्स में, बस ओपनली बर्न कर देते हैं. सो द ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट रिलीजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड से लेके बहुत सारा पोल्यूटेंट्स निकलते हैं. सो pyrolysis is a method through which we burn it in a closed manner in the controlled flow of oxygen. Okay, so जिसकी वजह से overall pollutants कम होगा. Of course वहाँ से भी pollutant निकलता है, but you will get a by-products. Okay, थोड़ा सा better method of burning. Plasma gasification is also the same. Okay, so gasification में क्या होता है? Gasification में we will burn it in such a manner that it produces another gas which is combustible in nature. Such gases are called as synthetic gas, syngas. Okay, waste को एक particular method से जलाने से वो निकलता है. Okay, syngas, that gasification process. Okay, so that is waste to energy technologies. Waste to energy technologies basically involves the usage of waste to produce energy, and most of them actually are slightly polluting in nature. Okay, थोड़ा बहुत तो pollution होता ही है इससे. Otherwise तो सारा waste तो हम energy में convert कर ही लेंगे ना. So there are not much very efficient methods of waste to energy conversion. So however, this pyrolysis and plasma gasification both are waste to energy conversion methods. Okay, the answer is D. So ये सारा अलग अलग मेथड है. नॉर्मल लैंड फिलिंग तो हो ही है, हम जमा के रखना होता है लैंड फिलिंग. इंसिनरेशन इज बर्निंग. ओके, सो ऑक्सीजन सप्लाई करो, जलाओ, दैट इज व्हाट इज इंसिनरेशन. पायरोलिसिस इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एट लोअर टेम्परेचर. बेसिकली पायरोलिसिस की वजह से सिन गैस निकलता है. गैसिफिकेशन इज ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस. ठीक है, सो और इस पायरोलिसिस के साथ में है ना, सो एक लिक्विड भी आता है, पायरोलिसिस लिक्विड एंड कोक एंड इवन gasification process में so you will also get biochar. Okay, so biochar as a byproduct you will get it. Okay, plasma gasification is at a very high temperature, so that is also a method. So but it is said that no emission of greenhouse gases happen here. So but it is you know, it's a little bit costlier affair, so not very economically friendly. ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आया था. यही है क्या 2019 में? नहीं, 2019 में एक क्वेश्चन था, 23 में शायद 2 क्वेश्चन आया था. चलो, हाइड्रोजन एनरिच्ड CNG, HCNG. व्हाट इज दिस HCNG? उस साल में न्यूज़ में था, तो ऐसे प्रोटोटाइप कुछ बस चलाया था दिल्ली में, प्रोटोटाइप चलाया था. ओके, सो उस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आया था. The context of proposal to use hydrogen enriched CNG, मतलब normal CNG is what is there in CNG? Natural gas. Natural gas में क्या होता है? मीथेन होता है ना. That is what is natural gas. कोई भी natural gas ले लो या LPG ले लो, it's majorly methane only. So CNG is compressed natural gas which is used for automobile. तो उससे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता है, बट बाकी सारा पोल्यूटेंट्स कम होता है. कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा, so it is internal combustion engine, but it is a better form of fuel than petrol and diesel because it releases lesser particulate matter. Okay, so oxides of nitrogen and oxides of sulfur, बाकी सारा बहुत सारा नहीं निकलता इससे. और उसको और बेहतर बनाने के लिए और कार्बन मोनोऑक्साइड कम करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के लिए, there is a method that you blend CNG with hydrogen. Okay, so hydrogen proportion भी बहुत ज़्यादा increase नहीं कर सकते, only to some extent you can blend it. Okay, so that way they tried to do it. Okay, as a prototype they try to do it on a experimental basis. Okay, that is what is hydrogen enriched CNG fuel. The main advantage of hydrogen CNG is the eliminate हो गया ये. So you cannot eliminate the complete carbon monoxide because that will be eliminated only when you use complete hydrogen. जब तक
CNG का पार्ट रहेगा तब तक तो थोड़ा बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो आ ही जाएगा. Okay, it reduces the carbon dioxide and hydrocarbon emission. This is right. Reduce तो होगा, eliminate तो नहीं होगा. ठीक है. Up to 1/5 of by volume can be blended, ये भी सही है. Makes the fuel less expensive. Less expensive तो आदि अभी तक बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए था. That is one of the major limitation. Okay, when you blend hydrogen and hydrogen production अभी बहुत costly affair है. Okay, so we are planning to have a cheaper production of hydrogen. तब वो रहेगा, economical रहेगा. So other than this, hydrogen is costly to produce right now. It is very abundant, but it is costly to produce, costly to store, costly to transport. So there we have to work. Okay, so the answer is B. ठीक है. So these are the benefits of HCNG. 4% more fuel economy than CNG, 70% reduction in carbon monoxide, 4% हाँ वही है, 70% reduction in carbon monoxide. Okay, ऐसे experimental basis में ये introduce हुआ था. So and this method of blending was done by Indian Oil Corporation. Okay, तो उनकी तरफ से ये experimental basis में हुआ था. Okay, so you can see Delhi Transport Corporation का जो buses के ऊपर ये चला था 6 months pilot project. But however, it is slightly costlier क्योंकि hydrogen of course costlier. According to India's national policy on biofuels, which of the following can be used as raw material for the production of biofuels? बताइए. बताइए. बायोफ्यूल क्या है? कल हमने बात किया था. बायोफ्यूल इज बेसिकली एनी काइंड ऑफ फ्यूल विच इज प्रोड्यूस थ्रू बायोलॉजिकल सोर्सेस, है ना. बायोलॉजिकल सोर्सेस हम प्रोड्यूस करते हैं. सो देयर आर 4 जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल्स. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ. द फर्स्ट इज फूड क्रॉप, सेकंड इज नॉन फूड क्रॉप्स, थर्ड इज अलगे, फोर्थ इज GM, है ना. तो ये सारा था बायोफ्यूल. सो ये सारा तो बेसिकली क्रॉप्स ही है. आइदर फर्स्ट जनरेशन होगा या सेकंड जनरेशन होगा. Okay, so the point is whether which of them can be used to produce biofuel or not. Of course, you can use all of them. The question is, according to the national policy on biofuels, which of them are allowed to be used? वो मतलब तो वो है. Okay, so otherwise, so there is no need of mentioning India's national policy on biofuels, because there is this debate, है ना. First generation, second generation में तो यही issue है ना. So there is a debate that the use of normal crops, food crops for the biofuels will reduce the availability of food crops itself. It will impact the food security. ये सारा issue था. So that was highlighted in the national policy. National policy में focus बोला है कि ठीक है second generation के ऊपर focus करेंगे. Second generation में तो वही है, plant residue होगा, तो plants होगा, जो non food crops होगा. But उसके साथ में so some of these additions are also given. Okay, some of the additions are given. What are they? Damaged wheat grains, okay, so rotten potatoes and sugar beet, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है क्या क्या यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो ये सारा तो वेस्ट है. सो इनफैक्ट इसके साथ में सो ये भी बोला है कि जो FCI के गोडाउन में जो वेस्ट होगा, ख़राब हो गया, हमने तो स्टॉक रखते हैं ना फॉर इमरजेंसी पर्पस, बहुत बार ये ख़राब हो जाता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही दिया है. सो बेसिकली विच इज़ नॉट फिट फॉर कंजम्पशन दैट कैन बी यूज, दैट इज़ प्रमोटेड इसी कंटेक्स्ट में. So what is cassava? Cassava क्या होता है? Cassava is the tuber, जो tropical regions में होता है ना. So the tuber, it is not a food source as such. Additional है, उसको use कर सकते हैं. Okay, it's not a food source. Food crop का source नहीं. Groundnut seeds you cannot use. Horse gram you cannot use. Horse gram, it's a pulse. Okay, तो वो use नहीं कर सकते हो. Except these two. 3 and 4 हटा दो, आपको मिल जाएगा आंसर. Right? So what are the crops which can be used? Okay, देखो यहाँ पर दिया है. For ethanol production, following raw materials may be potentially used. Molasses. What is molasses? भाई ये sugar cane से निकालते हैं.
Okay, so it's a raw material used in various different industries also. Sugarcane juice, biomass in the form of grasses, agriculture residues like rice straw, cotton stalk, okay, corn cobs, sawdust, bagasse. What is bagasse? Sugarcane juice निकालने के बाद में left over होता है ना, that is bagasse. Sugar containing material like sugar beet. Sugar beet is again produced from the sugarcane. Sugarcane juice से produce करता है. Okay, so sweet sorghum and starch containing material like corn, cassava, rotten potatoes, etc. Damaged food grains. देखो ये तो directly नहीं निकला है यहाँ से. Damaged food grains में कोई भी हो सकता है. Okay, which are unfit for human consumption. Food grains during the surplus. जब बहुत ज़्यादा surplus आ गया तब use कर सकते हो. Algal flat stocks and cultivation of seaweeds can also be potential feedstocks. Okay, question थोड़ा सा और clarify कर सकता था. It could have been better. Okay, because they are not saying which it should be used or it is allowed to be used. ऐसे तो नहीं दिया. It can be used बोला है. जब can be used हो जो add करोगे तो कुछ भी use कर सकते हो. Okay, so but it also specifically mentions about the national policy on biofuels, right? तो उस context में देखा तो थोड़ा बहुत आपको hint मिल जाएगा. Okay, so that is why the answer is ये. बताइए. ग्रीन हाइड्रोजन, वही 2023 में 2 क्वेश्चन था ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेरियस डिफरेंट सोर्सेस. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन? वाटर. ओके, सो वाटर यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस करो तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वो अलग हो जाएगा. वो है गेट सेपरेटेड, हाइड्रोजन get separated, right? So that is the method of production of hydrogen. But वहाँ पर आपको electricity चाहिए. Okay, so you need electricity for the electrolysis of water, where you break into H and OH. दोनों को अलग अलग कर दोगे ना, इसके लिए electricity चाहिए. Now depending upon the source of electricity, we have different types of hydrogen. बात तो यही है. Okay, hydrogen production most common तो water के through ही होगा. Now to produce electricity, that if that electricity is produced from green sources मतलब renewable sources, clean sources, in that case this hydrogen becomes green hydrogen. Okay, so the green hydrogen is basically produced from green source of electricity. Green hydrogen is expected to play a significant role in decarbonizing. How many? Decarbonizing, of course, because this electricity is produced from the green sources. यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा है, सो ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रहा है ना. सो यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली हेल्प्स इन डीकार्बनाइजेशन. बाकी ग्रे हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. यू मे बी यूजिंग द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से डायरेक्टली कार्बन नहीं निकलेगा, बट द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. बात तो बराबर हो गया. सो इसलिए हमारा फोकस है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर. ओके, इफ एट ऑल यू आर यूजिंग ग्रे हाइड्रोजन और ब्लैक हाइड्रोजन एंड फ्यू अदर ways of production of hydrogen, and that is producing carbon dioxide, it is equivalent to burning the carbon only. So decarbonization of how many of the above industries? इसका मतलब क्या है? Using green hydrogen in these industries, whether they are being used in these industries or not, basically इस industries में hydrogen use होता है या नहीं होता है, यही क्वेश्चन है. Okay, so अगर यहाँ पर हाइड्रोजन यूज हो रहा है तो वहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन यूज होने से ऑफ कोर्स डीकार्बनाइज तो हो ही जाएगा. एंड ऑल द इंडस्ट्रीज यूज हाइड्रोजन. तो एक्सपेक्टेड तो और इजी कर लिया आंसर को. ओके, सो सारे इंडस्ट्रीज में होता है. ऑल द इंडस्ट्रीज यूज हाइड्रोजन, ऑल 3. These are different types of hydrogen. Green hydrogen is the one which uses electricity from renewable sources. Purple hydrogen uses electricity from nuclear power. Nuclear power से electricity निकाल के फिर हम वहाँ से hydrogen produce करेंगे. Okay, but you know, so nuclear is also nuclear waste produce होगा. It may not be. It will not result in carbon dioxide release, but it may result in other issues. Blue hydrogen is produced from
the reforming of natural gas into carbon dioxide and hydrogen in combination with carbon capture and storage. Okay, थोड़ा बहुत ऐसे. So green is always the better. Grey hydrogen तो पूरा fossil fuel use करके. Okay, so उससे तो greenhouse gas निकलता है. Black hydrogen तो वो पूरा कोल से निकलता है. Okay, so कोल से निकलता है. Yes, of course, synthetic gas formation के through. Right? So ये तो टोटली इसी के ऊपर ही. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च हुआ था 2023 में, इसलिए 2 क्वेश्चन आ गया. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आल्सो रिलेटेड टू ग्रीन हाइड्रोजन ओनली. Green hydrogen. It can be used directly as a fuel for internal combustion engine. Can you use hydrogen for internal combustion engine? Can be used. You need to make that kind of engine. Okay, so hydrogen is a very good fuel. Okay, so hydrogen, you burn it with oxygen, it will burn. Okay, you use hydrogen to burn it with oxygen, it will burn. It will combustion होगा. Combustion process तो होगा. Energy भी produce होगा. Carbon dioxide नहीं निकलेगा. It is one of the best way of production of energy. Okay, so फिर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हम? वैसा वाला इंजन बनाना पड़ेगा. इंजन बनाना है स्टोरेज के लिए, हाइड्रोजन स्टोरेज करना है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पर दिक्कत है. अदरवाइज यू कैन बर्न हाइड्रोजन, इट ईजिली बर्न्स. हाइड्रोजन तो बहुत ईजिली जल जाएगा. Okay, it produces energy also. It can use directly as a fuel in internal combustion engine. Yes, it can be blended with natural gas and used for fuel. Yes, of course. यही तो हाइड्रोजन HCNG तो आया था क्वेश्चन. Okay, natural gas से तो हुआ था, डायरेक्टली दोबारा रिपीट हो गया. It can be used in hydrogen fuel cells to run vehicles. Yes, of course. Okay, so answer is C. देखो वही इसी के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हैं. So green hydrogen. Okay, so थोड़ा सा देख लेना. National mission on green hydrogen. Which one of the following is the exhaust pipe mission from fuel cell electric vehicles powered by hydrogen? हाँ, ये साल का क्वेश्चन है. Okay, so fuel cell electric vehicles. So what happens when you use hydrogen as a fuel cell? Hydrogen is reacting with the oxygen. Hydrogen and oxygen merge होके क्या बनता है? वाटर ही बनता है, और कुछ नहीं बनेगा. हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी नहीं बनेगा, हाइड्रोनियम भी नहीं बनेगा, खाली ऑक्सीजन तो नहीं निकलेगा. ऑफ कोर्स इट्स अ सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन. Okay, so this is what is hydrogen fuel cell. So basically ये फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स होके एनर्जी प्रोड्यूस होगा, फिर एनर्जी की वजह से ये चलेगा. राइट? डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस. इस साल का क्वेश्चन देखो थोड़ा सा slightly different from the earlier trend. Most of the questions of 2024, so they were either related to the technology aspect, technology related questions आए हुए, या ट्रेडिशनल में पेरिफेरल एरियाज है, कोर एरिया पूछा ही नहीं. ओके, सो लेट्स होप ऐसे दोबारा ट्रेंड ना आई. ठीक है, बिकॉज दैट विल रिड्यूस द स्कोरिंग पोटेंशियल. सो जियोग्राफी में अलग है. जियोग्राफी वाज लाइक टोटली ट्रेडिशनल, टोटली प्रिडिक्टेड, कॉन्सेप्चुअल पार्ट आया था, जो भी अच्छे से पढ़ के गए थे तो उनका तो हुआ था. बट एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस वर लाइक स्लाइटली अनप्रिडिक्टेबल टाइप था. सो आइदर मोस्ट ऑफ देम आर टेक्नोलॉजी रिलेटेड, मेथड रिलेटेड, और जो हम ट्रेडिशनली फोकस किया था सो उसको कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया था, है ना. सो नेशनल पार्क ले लो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ले लो, सो या बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड ले लो, सो उसके अंदर पेरिफेरल एरियाज, प्लांट स्पीशीज पूछ लिया, इंसेक्ट्स पूछ लिया. ओके, सो बट स्टिल यू नो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. सो आइडिया इज गिव मोर फोकस ऑन द करेंट ट्रेंड्स, करेंट टेक्नोलॉजीज. ओके, सो जो भी एनवायरमेंटल इशूज़ है उसमें करंट रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है. सो एंड एनसीईआरटीज में जो टर्म्स यूज़ किया है उसको भी थोड़ा सा अच्छे से देख लेना.
डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस तो बहुत सिंपल है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस. व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस? जनरेशन होते होते ही डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स में है, नॉट एट द वन लोकेशन. Localized production of energy is basically distributed source of energy, distributed energy resource. For example, rooftop solar. ओके, जहाँ पर कंज्यूम होगा वहीं पे बनेगा, मतलब जितना होगा उतना स्मॉल स्मॉल स्केल में अलग अलग जगह में होगा. ओके, इट्स नॉट लाइक generated at one location and then distributed. No, distributed energy resource is energy source itself is distributed. ओके, सो इसमें सारा तो आ ही जाएगा. बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल, रूफटॉप. ओके, सो सब तो डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है. ओके, रूफटॉप तो पता है. सो रूफटॉप वी इंस्टॉल इट ऑन द टेरेस, घर के ऊपर होगा. सो जो भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रैप होगा तो वहाँ से एक तो हमारा सोलर हीटर भी चलता है, वाटर हीटर भी चलता है, और उसके अलावा तो लाइटिंग भी चलता है. तो इफ़ वी इंस्टॉल 1 or 2 फ्यूल सेल तो वहाँ पर लाइट भी चलेगा. ठीक है, सो फ्यूल सेल भी वही मैकेनिज्म है. फ्यूल सेल विल स्टोर द एनर्जी एंड यूज इट देयर ओनली. ओके, सो बायोमास जनरेटर. ओके, रूरल एरियाज में, सो वेर एवर द एग्रीकल्चर फील्ड्स आर देयर, वहाँ पर वहीं से होगा. ओके, बैटरी स्टोरेज इज ऑल्सो. ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली द आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स. ओके, जहाँ पर कंजम्पशन हो रहा है वहीं पे स्टोर होगा. ओके, ऑल ऑफ दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड लोकलाइज्ड सोर्सेस. बताइए. सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी ये टोटली न्यूज़ में था. ये मत सोचो ऐसा ही जनरली एविएशन में यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते. ये तो ऐसे यूज़, मतलब देयर वाज ए न्यूज़ आइटम वेयर दे हैड attempted to replace the normal aviation fuels with the sustainable aviation fuel. What is the difference between normal and sustainable aviation fuel? So normal aviation fuel is one of the highly energy intensive. ओके, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है ना, सो एनर्जी डेंसिटी तो होगा. सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हाईली एमिटर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस. कार्बन डाइऑक्साइड इससे बहुत ज़्यादा निकलता है. वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज एविएशन सेक्टर. ओके, सो इट इज सेड दैट नियरली 2% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस कम्स फ्रॉम द एविएशन ओनली. So in that context, recently there was an initiative taken to make the fuel more sustainable using some of the other resources जहाँ पर overall emission कम है. Okay, या जो usually waste जाता है. Okay, so in fact here they start to use it as in the sense of so biomass जो feedstock use करके करने वाले थे. Okay, sustainable aviation fuel is a liquid fuel used in commercial aviation which reduces the emission by up to 80%. It is produced from a number of sources, feedstock, including the waste oil, fats, green and municipal waste and non-food crops. जो waste होने वाले हैं उसको यूज़ करके बना रहे हैं. Okay, इससे वेस्ट जनरेशन भी कम होगा, वेस्ट डिस्पोजल कम होगा, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बेटर आएगा. Okay, so the biomass is collected and then they are made as biofuels. ठीक है, so that is the basic idea. ठीक है, सो इसमें तो ऑफकोर्स सारा तो यूज़ कर सकते हैं. एग्रीकल्चर रेसिड्यू, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लर्ज. ओके, सो वुड मिल वेस्ट, तो ये सारा जिसके अंदर जो बायोमास प्रोडक्शन का कैपेसिटी है सारा यूज़ करके बनाएंगे. ठीक है, सो दीज आर द वेरियस फीडस्टॉक्स विच आर सूटेबल. ओके, सो जहाँ पर एनर्जी है बेसिकली जो हमारा बायोफ्यूल का ही कैटेगरी है. अलगे भी बड़ा डालो, फॉर एग्रीकल्चर वेस्ट भी डालो, सॉलिड वेस्ट भी डालो. ओके, सो या ईटरीज में कुकिंग वेस्ट भी डालो. सो ऑल ऑफ दिस, it is said that it produces 80% less carbon dioxide than normal fossil fuel based. Okay, so it accounts for 2% of the carbon dioxide emissions. Sustainable aviation fuel. Pumped storage hydropower. What is this pumped storage hydropower? Irrigation of terraced crop field. Hydropower.
lift irrigation of cereal plants, long duration energy storage, rainwater harvesting system. Rainwater harvesting system है क्या? Pumped storage. Okay, so rainwater harvesting system तो rooftop system होता है. रूफटॉप में जो गिरेगा वो पाइप के थ्रू कलेक्ट करेंगे, तो अंडरग्राउंड टैंक बनाएंगे, उसमें कलेक्ट करेंगे या ओपन फील्ड में छोड़ देंगे. सो वी डोंट पंप इट एनीवेयर. ओके, पंप करके स्टोर नहीं करेंगे. लिफ्ट इरिगेशन ऑफ द एग्रीकल्चर. ओके, सो सीरियल क्रॉप्स में सो लिफ्ट इरिगेशन के लिए पंप स्टोरेज, टेरेस्ड क्रॉप फील्ड. टेरेस्ड क्रॉप फील्ड मतलब ऊपर लेवल में जो क्रॉप फील्ड होता है ना, दैट इज व्हाट इज टेरेस्ड क्रॉप फील्ड. हाइड्रो पावर जनरेशन में आप लोगों ने सुना ही होगा. नॉर्मली हम क्या करते हैं, हाउ द हाइड्रो पावर इज प्रोड्यूस्ड. सो देयर विल बी ए रिजर्वायर जहाँ पर पानी जा रहा है. सो उसको हम डैम बना देंगे, स्टोर करेंगे. सो जब चाहिए तब रिलीज करेंगे, तो यहाँ पर टर्बाइन होगा. Okay, this is where we keep the turbine. If there is a river, so there first we will dam it, will make a reservoir and will release it according to our need. जब release करेंगे यहाँ पर टर्बाइन चालू होगा. Okay, टर्बाइन चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा. पम्प स्टोरेज में क्या करता है ना, so we will keep a reservoir. Okay, so in upper elevation. Okay, पंप करके रखेंगे. So basically जब चाहिए तब यूज़ कर सकते हैं. It's a way of storage. क्योंकि whenever you want, you just let it down. ओके, पाइप के थ्रू, टनल के थ्रू आ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा. इट्स कंसिडर्ड टू बी ए वे ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी ओनली. इज दैट राइट? सो ऊपर हम स्टोर करके रखेंगे, जब चाहिए तब यूज करेंगे. दैट इज द आइडिया. ओके, व्हेनेवर यू वांट यू कैन रिलीज दैट एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, राइट? उसके अंदर दो तरीके हैं. वन इज ओपन लूप, अनदर वन इज क्लोज लूप. ओपन लूप क्या करेंगे, दिस काइंड ऑफ स्टोरेज इज यूज्ड अलोंग विद द रिवर. नॉर्मल रिवर चैनल के थ्रू स्टोर करके उसको छोड़ देंगे. क्लोज लूप में कोई रिवर नहीं है, वो स्टैंड अलोन रहेगा. Okay, so here you can see there is a river, there is no river as such. तो यही होता है pumped storage hydro power. हाँ, बेसिकली हमें पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए बस. इसको फिर दोबारा स्टोर करने के लिए पंप करो, स्टोर करो, एक्सेस से जो भी हो जाएगा. ओके, सो सी क्लोज लूप, ओपन लूप में ये तो डिफरेंट नहीं है, तो हमारे लिए ये काम होगा. Whatever the reservoir you are made in the higher elevation, the water is stored over there and that water is released whenever you want, and फिर उसकी वजह से टर्बाइन जनरेट रन होगा. ओके, तो यहाँ से वो जो पानी है ना, वो नॉर्मल फ्लो में कनेक्ट हो जाएगा. दैट इज व्हाट इज ओपन लूप. यहाँ पर नॉर्मल रिवर फ्लो से कनेक्टेड नहीं है बस. दोनों में पोटेंशियल सेम हो सकते हैं. So we have long duration energy storage because you are storing that energy, right? So and you are using it whenever you want. So membrane bioreactor भी recently न्यूज़ में इसलिए है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में. ऑफ कोर्स वो वैक्सीन प्रोडक्शन में तो नहीं है, ड्रग डिलीवरी भी नहीं है, ART भी नहीं है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी भी नहीं है. Very easily you can eliminate membrane bioreactors. Okay, so normal जो water treatment process तो ये था, इसका नाम है activated sludge treatment process. Okay, activated sludge treatment process is a normal way of water purification. बहुत जगह में यही water treatment ऐसे ही चलता है. Okay, so first it involves the removal of solid, then there is a pre-treatment, फिर एरेजन होगा. अब तो मतलब एयर पंप होने की वजह से वो डिकम्पोजिशन एक्टिवेट होगा. फिर वो सारा जो सेडिमेंट्स है वो सारा सेटल होगा, जो डिकम्पोज पार्ट है वो पूरा सेटल होगा. फिर सैंड फिल्ट्रेशन होगा, फिर वाटर फिल्ट्रेशन होगा. दिस इज नॉर्मल वे ऑफ वाटर ट्रीटमेंट. ओके, एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्रोसेस. तो अभी उसके साथ में मेम्ब्रेन भी इंटीग्रेट करने वाले हैं. देखो यहाँ पर जो सेटलर था ना, तो ये सारा तो सेम ही है. देखो, सॉलिड रिमूवल, फिर प्री ट्रीटमेंट, फिर एरेजन जोन, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन डाल देंगे. उसकी वजह से और अच्छे से फिल्टरिंग होगा और अच्छे से बेटर होगा. Okay, so it's a way of water treatment. It's a new type of wastewater treatment technology combining the membrane separation process with the conventional activated sludge treatment process.
Okay, so membrane का pore sizes it may be as low as 0.1 micrometer, जिसकी वजह से और effectively उसको waste को पकड़ता है. Agriculture related questions थोड़ा सा ध्यान से देख लो, कि they are important. Energy related question देखो, they are all, most of them are related to technology only, most of them are related to current affairs only. Okay, ऐसे traditionally देखने के लिए आपको ज़्यादा नहीं मिलता है. It is more or less related to current affairs. Agriculture is one topic जहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, because in the recent times their weightage has increased, है ना. So ये तो generally is ज़रूरी है, for the public also it is required to understand the issues related to agriculture as such, because agriculture is like double-edged sword. Okay, तो एक तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये नुकसान में जा रहे हैं. Okay, so because of global warming, climate change, crop failure are happening, pests are becoming more frequent, drought is happening. Okay, water का availability कम होते जा रहे हैं, ये सारा इशू तो हो रहा है ना. At the same time, agriculture is also contributing towards global warming. कैसे? Okay, so it releases a very good amount of carbon dioxide, methane. Okay, so and also highly water intensive crops, जिसके वजह से वाटर का डिप्लीशन होते जा रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन होते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होते जा रहे हैं. सो इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो. सो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी कम करना है, एंड एग्रीकल्चर शुड ऑल्सो बी मेड रेजिलियंट. वहाँ पर बहुत सारा मेथड्स है. ऑल ऑफ दिस मेथड्स दे आर ऑल, जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना आजकल वही उसी के ऊपर ही फोकस्ड है. हाउ टू मेक द एग्रीकल्चर रेजिलियंट, हाउ टू मेक द एग्रीकल्चर सस्टेनेबल. बताइए, व्हाट इज द आंसर हियर? इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर. नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर क्या होता है? हमारे यूरिया जो सबसे कॉमन है, सबसे सस्ता है. ओके, बिकॉज गवर्नमेंट हैज सब्सिडाइज दिस, है ना. सो ओवरऑल सस्ते में मिल जाएगा, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. बाकी सारा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, सल्फरस फर्टिलाइजर्स हम ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते हैं. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस हैज़ बीन ए प्रैक्टिस. सो ये अवॉइड करना है. वी नीड टू give a proper balance. Particularly we need to use the fertilizer only after assessing the requirement level. Okay, requirement level के हिसाब से ही करना है. But because of subsidy and various other factors, यूरिया बहुत easily मिल जाएगा, तो लोग बहुत ज़्यादा डाल देते हैं. इसके वजह से क्या होता है? यूट्रोफिकेशन, रिलीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ओके, जहाँ पर सॉइल में बहुत ज़्यादा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फंस गया, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर ना, ज़्यादा तो ऑब्जर्व नहीं होगा प्लांट्स में, बहुत सारा सॉइल में रह जाता है. जब बारिश होगा तो ऑल ऑफ दिस गेट्स वॉश्ड अवे एंड रीचेस द नियर बाई वाटर बॉडी, लेक्स, वेटलैंड्स और रिवर्स. देयर ड्यू टू द एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स देयर इज यूट्रोफिकेशन, राइट. And the presence of too much of oxides of nitrogen in the soil can also cause them to be released into the atmosphere, various different oxides of nitrogen. Proliferation of nitrogen fixing microorganism in the soil. Okay, so इतना तो ज़्यादा नहीं होता है. Okay, just because you are using excessive nitrogen fertilizer, you cannot expect more number of nitrogen fixing microorganisms will come. ये क्या connection है? What are these nitrogen fixing microorganisms? Anabina, spirulina, Azotobacter, Clostridium. Okay, so ये सारा तो they are helping in nitrogen fixation in the soil, right? They don't come more in nitrogen fertilizer. Fertilizer ज़्यादा डालने से वो ज़्यादा नहीं आएगा, वो नहीं है ज़्यादा आएगा, ऐसे तो नहीं. They, of course, the excessive use of nitrogenous fertilizers will increase the acidity. Yes. Okay, ammonia component जैसे increase हुआ तो थोड़ा बहुत acidity increase होता है. Leaching of nitrate into the groundwater can also occur. Yes, nitrate is considered to be a pollutant. Okay, nitrate pollution हो सकता है, groundwater may get polluted.
Okay, so with the use of excessive amount of nitrogenous fertilizers, it may cause the leaching and the groundwater may also get contaminated. Answer is C. नाइट्रोजन साइकिल तो जानते हो. There's so much of nitrogen in the atmosphere, but the plants will not be able to take that directly. We need this atmospheric nitrogen to be absorbed by the plants. So in between comes our nitrogen fixation bacteria. They are the one which are capable of absorbing the atmospheric nitrogen and convert this nitrogen into ammonia, nitrites and nitrates. Soil में वो convert हो जाता है into ammonia, nitrites and nitrates. ठीक है? So उसको absorb करेंगे through the process of assimilation. Assimilation helps in absorption of these. इसी के अंदर फिर ammonification भी होगा, nitrification भी होगा. They are all involved in the conversion of these one into another. Okay, once it is assimilated through consumption, it comes to animals. Once animals and plants both die through decomposition, it goes back into the soil. Decomposition के through फिर वो अंदर ही ऐसे continuously circulate होते ही रहता है. अगर अंदर ही circulate हो रहा है तो यहाँ से absorb करने का क्या ज़रूरी है बताइए. अगर यहाँ पर continuously circulate हो रहा है तो यहाँ से क्यों absorb करना है. जैसे nitrification होगा वैसे denitrification भी होगा. The soil nitrogen will get converted into atmospheric nitrogen. There are few bacteria वो वापस भी convert कर लेता है. उसको बोलते हैं denitrification. दोनों काम करता है. नाइट्रिफिकेशन भी होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, डीनाइट्रिफिकेशन भी होगा. ओके, तो नेचर में so एक बैलेंस है. देयर इज अ बैलेंस इन दिस नाइट्रोजन साइकिल. बट बिकॉज ऑफ यूजिंग एक्सेसिव फर्टिलाइजर से हम क्या डालेंगे सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन कंपाउंड्स आना शुरू हो गया. नाइट्रोजन साइकिल इज टोटली डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस. One of the highly disturbed biogeographical chemical cycles. Okay, so biogeochemical cycle में बहुत सारा सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब साइकिल है नाइट्रोजन. फिर आता है कार्बन. फर्टिलाइजर से अमोनिया आता है, अमोनिया से नाइट्रेट भी आता है. यस, okay, so just go through them. नाइट्रोजन रिलेटेड थोड़ा बहुत और डेटा में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. So one of the way of controlling the use of urea, one of the way of reducing the absorption of urea, removal of urea in the soil is it was introduced as a special scheme or program that was neem coated urea. Okay, so neem coated urea. Neem coated urea में क्या करता है? They will coat the urea with neem oil. Okay, neem oil से coat करेंगे. इससे दो benefit है. One is neem oil will act like a fungicide. Okay, fungicide भी होता है वो insect fertilizer जैसे भी काम करता है. Second, उसके अंदर जो यूरिया होगा ना, यूरिया बहुत इजीली निकलेगा नहीं. It will reduce the rate of absorption of urea.
सॉइल के अंदर यूरिया रहेगा, सो जिसकी वजह से यूरिया यूजेज कम होगा. Okay, so this will reduce the usage of urea. That is the idea. It slows down the dissolution of urea in the soil. Okay, so otherwise release of neem oil in the soil increases nitrogen fixation. वो बात नहीं है, इसीलिए नहीं कर रहे हैं. Okay, that is not the point of usage of this. Nitrous oxide, which is a greenhouse gas, is not at all released into the atmosphere. ऐसा तो नहीं है. It is a combination of weedicide and fertilizer for a particular crop. ऐसा भी नहीं है. So basically neem coating slows down the rate of dissolution of urea in the soil. जिसके वजह से नॉर्मली क्या करते हैं हम, यूरिया डालने के बाद में वो बहुत जल्दी सॉइल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, उसके चक्कर में फिर दोबारा डालना पड़ता है. मल्टीपल टाइम्स यू विल हैव टू पुट इट. सो एज द डिसोल्यूशन रेट डिक्रीजेस, द अब्जॉर्प्शन इज हैपनिंग स्लोली एंड कंटिन्यूसली. ओके, जिसकी वजह से यूरिया कंजम्पशन कम होगा. ओके, यूरिया कंजम्पशन कम हुआ तो वहाँ पर यूट्रोफिकेशन हो रहा था, वो भी कम होगा. Okay, farmers will start to use less urea, right? Eutrophication कम होगा, release of greenhouse gas will be less, right? That is the idea of neem coated urea. These are the various benefits of neem coated urea. Okay, so reduces the NOx emission, helping in climate change combating. Reduces the cost of cultivation because urea production, यूरिया का भी हम कंजम्पशन कम हो गया ना. Improves the carbon footprint of agriculture and food system, lowers groundwater pollution. Okay, so वही यूरिया के वजह से नाइट्रोजन फिल्ट्रेशन हो रहा था ना, मतलब इनफिल्ट्रेट हो रहा था. Okay, so and more crop per unit nutrient, मतलब हाँ भाई, when you start to use less urea, definitely. बताइए. सुना है गियास, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम. गियास जीआई से रिलेशन नहीं है, ठीक है. और जीआई तो हटा दिया तो आपको आंसर ही मिल गया. Getting the status of GIAS doesn't mean that you will get GI automatically. GI का अलग प्रोसेस है. What is GI? उस लोकेशन में जो वो बन रहे हैं वो वहीं पे ही है, उसी लोकेशन का स्पेशलिटी और कहीं पे भी नहीं मिलेगा, है ना. दैट इज व्हाट इज GI. फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग टी. ओके, सो यू कैन नॉट ग्रो दार्जिलिंग टी इन असम, फिर असम टी हो जाएगा, है ना. सो बहुत लोग करते हैं, असम में बना देंगे और हिमाचल में बनाएंगे, फिर बेचेंगे दार्जिलिंग टी बोल के. ये सब कम करने के लिए इट्स लाइक ए क्या पायरेसी टाइप है ना, जो ओरिजिनल और कहीं पे उसके नाम पे और कहीं पे भी बना रहे हैं. तो इसी कंटेक्स्ट में जीआई इंट्रोड्यूस हुआ था. जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिस टैग को मिल जाएगा, बस उसी टी उसी लोकेशन में जो उसी प्रोडक्ट मिलेगा उसी को ही वो नाम से बुला सकते हैं. यू कैन नॉट कॉल दार्जिलिंग टी फ्रॉम हिमाचल एज दार्जिलिंग टी, टी फ्रॉम हिमाचल एज दार्जिलिंग टी. वो जीआई टैग दार्जिलिंग टी इज वंस इट गेन्स जीआई टैग, वो वहीं कहीं लिमिट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल तिरुपति लड्डू. तिरुपति लड्डू अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी भी हुआ था, है ना. तो जी तिरुपति लड्डू हैड गॉट जीआई टैग लॉन्ग बैक, राइट. सो इन दैट कंटेक्स्ट, सो जिसका जो प्रोडक्शन वहाँ पर जो वो टेस्ट है, वो इंग्रेडिएंट है, यू विल नेवर फाइंड एनीवेयर एल्स. इफ एट ऑल यू हैव टेस्टेड तिरुपति लड्डू, यू नो बहुत डुप्लीकेट भी बेचता है. सो यू कम डाउन, अब तिरुपति में आ जाओ, तो तिरुपति इज द टाउन, तिरुमला इज द हिल. तिरुमला के ऊपर है टेम्पल. ओके, तो वहाँ पर जो मंदिर में मिलता है ना, सो वैसे वाला लड्डू, वैसे वाला टेस्ट और कहीं पे भी नहीं मिलेगा. नीचे आ जाओ, यू गो टू कालाहस्ती, यू गो टू अदर लोकेशंस, you will find many such laddu, but none of them will be actually as good as तिरुपति लड्डू. मतलब जो उतना जो टेस्ट है या उसका जो भी इंग्रेडिएंट यूज होता है, so people also associate with that the divinity. Okay, तो वो वहाँ पर मंदिर में मिला है ना, तो उसका है.
इसलिए उसको जीआई टैग दे दिया। और कहीं पे भी ये नहीं बोल के बेच सकते कि ये तिरुपति लड्डू। दैट इज द आइडिया ऑफ तिरुपति लड्डू। जीआई टैग इज नॉट गिवन बाय गियास। जीआई टैग तो वही उसके लिए अलग सा है, तो जीआई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सो देन दे विल कम एंड चेक, दे विल वेरीफाई एंड देन दे विल ग्रांट जीआई। ठीक है, वंस यू गेट द गियास इट डजंट मीन दैट यू विल गेट जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये गलत है, इससे आंसर निकल जाएगा। To identify and safeguard eco-friendly traditional farm practices. Yes, that is the idea. Globally important agriculture heritage system, traditionally practiced farm practices and their associated landscapes and agriculture biodiversity and knowledge systems of local communities. This is right. To provide modern technology नहीं provide करेंगे। We are talking about the conservation of heritage, traditional method protect करना है, modern technology लेके आ गया तो वो खत्म हो जाएगा ना। And training in modern farming methods, financial support to local communities of identified GIAs so as to greatly enhance their agriculture productivity. So GIAs as a method was recognized at the global level. Okay, so global level में recognize होता है. So and जिसको recognition मिलता है. Okay, so this is done based on the with the support of FAO, Food and Agriculture Organization. Okay, so around nearly 80 sites across the world have been recognized and India 3 sites have been recognized. India में 3 location है जहाँ पर गियास का मिला हुआ है. Okay, so first one, of course, the first one to get was Odisha. Odisha में कोरापुट traditional agriculture method है ना, so वहाँ पर मिला था गियास. Okay, so in fact they also practice this, so what is that? Rice cultivation method. कि वहाँ पर बहुत environmentally friendly method of rice cultivation is there. Okay, so that is not direct seeding. तो वो राइस सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है। तो वो कोरापुट रीजन में वो प्रैक्टिस में था बहुत पहले से ही, वो सबसे पहले मिला था। अच्छा नहीं, फर्स्ट सबसे पहले तो इसका मिला हुआ है। ओके, सो शायद एक ही टाइम में अप्लाई हुआ था तो इसके लिए पहले मिला था, ये बाद में मिला था। ये अप्लाई पहले हुआ था बट मिला था बाद में। ओके, सो ये सैफरन कल्टिवेशन तो हमें पता है। सो सैफरन इज ग्रोन इन द कश्मीर वैली। सो व्हाट सपोर्ट्स द सैफरन कल्टिवेशन? करेवा सॉइल, जो करेवा डिपॉजिट्स है, लेक डिपॉजिट्स इज फाउंड इन द कश्मीर वैली, राइट? सो दैट इज द वन व्हिच इज सपोर्टिंग द सैफरन कल्टिवेशन। एंड कुटनाड बिलो द फॉर्मिंग, बिलो द सी लेवल फॉर्मिंग सिस्टम है ना, सो वहाँ पर कुटनाड, व्हाट इज कुटनाड नोन फॉर? कुटनाड इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द एलिवेशन। लैंड के ऊपर जो एलिवेशन है ना, तो वो सबसे नीचे है, मतलब इनफैक्ट सी लेवल से भी नीचे है कुटनाड। अगर ये सी लेवल है, नॉर्मली लैंड तो सी लेवल से तो ऊपर रहेंगे ना, कुटनाड थोड़ा सा नीचे है, इट इज़ बिलो द सी लेवल। इट इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। वहाँ पर जो कोस्टल एरिया है, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इज़ वेरी कॉमन। सो वहाँ पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसे मेथड डेवलप कर दिया, दे हैव स्टार्टेड टू ग्रो राइस। Okay, so and even the fish cultivation also parallelly. There is a traditional method of rice and fish cultivation near to the coastal region. That is Kuttanad below the sea level farming system. Okay, so they are used for coconut, tuber, food crops. Okay, so even the paddy cultivation, inland fishing, ये सारा use करते हैं. So all three have got this GIAS recognition: Koraput, Kuttanad, and then Kashmir. Okay, so KKK. Which of the following practices help in water conservation in agriculture? बताइए। Water conservation मतलब it will reduce the consumption of water. पानी का कंजम्पशन कम करना है। जीरो टिलेज से पानी का कंजम्पशन कम होगा? होगा या नहीं होगा? कैसे? What is zero tillage? Before sowing you will not do the tilling. Normally हम tilling करते हैं. Okay, why do we do tilling?
सीड जर्मिनेशन फास्ट रहे. Okay, so seed germination should be faster, soil will be loosened and अच्छे से gases mix होगा tilling के through. फिर zero tilling method of cultivation क्या होता है? Will not do tilling at all. Minimum tilling और zero tilling. Minimum till में बहुत कम tilling होगा या zero tilling में तो so tilling होगा ही नहीं. Tilling is a normal way of doing agriculture. Before sowing, we'll do tilling. You would have seen rural areas में you go to any of this plain area तो वहाँ पर पूरा tilling करके ready रखते हैं. They keep the land ready, they just wait for the rains. पूरा फार्म को पूरा साफ करके रख देता है अच्छे से टिलिंग करके. जैसे बारिश हो गया सोइंग करेंगे तो अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा. दैट इज द आइडिया. बट दैट इज ऑल्सो बैड फॉर द सॉइल बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टिलिंग यू विल रिमूव ऑल द रेसिड्यू, ऑल द प्लांट वैंड जो भी है, ऑर्गेनिक मैटर है, सब निकल जाएगा. दैट विल रिड्यूस द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल ऑल्सो. Presence of this organic matter, plant residue, all of these help in holding the moisture. पानी को पकड़ के रखता है ना. so जब बारिश होगा तब भी तो थोड़ा बहुत percolation होगा, अच्छे से पकड़ता है. टिलिंग अच्छे से करके रखने से क्या होगा? water which falls down on the ground will flow very easily. वो निकल जाएगा. you will end up using more water. therefore zero tilling is required. zero tilling या minimum tilling में तो क्या होता है? It will increase the water retention capacity of the soil, and because of which the water absorption increases and water usage decreases. Applying gypsum before irrigating the field, इससे क्या होता है? इससे और अच्छे से ड्रेन होते हैं पानी. Okay, irrigation करने के पहले जिप्सम अप्लाई कर दिया तो it will cause easier flow of water, इसलिए irrigation के टाइम में वो अप्लाई करता है. बट वो ईजियर फ्लो की वजह से बहुत इजीली निकल जाएगा. यू विल एंड अप स्पेंडिंग मोर वाटर. अलोइंग क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन, यही कॉन्सेप्ट है. क्रॉप रेसिड्यू बच गया तो क्रॉप रेसिड्यू को हम क्या बोलेंगे? मल्च. इफ यू पुट ए मल्च लेयर इट विल ऑल्सो अब्जॉर्ब द मॉइस्चर. ओके, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहेगा, वाटर का जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा. ठीक है. Using gypsum will increase the drainage capacity. Water flow increase करता है. Water flow increase होने से ज़्यादा usage होगा पानी. That is not conservation. Okay, can you see? Gypsum improves the ability of the soil to drain. Hence, it is not a water conservation practice in agriculture. Conservation agriculture. What is this conservation agriculture? कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है? वो कॉन्सेप्ट समझ लो, आंसर मिल जाएगा आपको. Why it is called as conservation agriculture? Why the name conservation agriculture? ठीक है. बट इसको ट्रेडिशनल इंडिजिनियस यूज करना क्या जरूरी है? Why only traditional or indigenous? Even modern methods can also be conservation agriculture. उसके अंदर conservation तो हो. Basically conservation agriculture is the one which will conserve the nature of the soil. It will conserve the properties of the field. उसको बचा के रखता है, deteriorate होने नहीं देगा. You can use any method. Traditional भी कर लो, modern भी कर लो. You have to make it sustainable बस. Okay, conservation agriculture aims to conserve and protect the nature of the soil and field. उसमें जो भी डिग्रेडिंग एलिमेंट्स है उसको हटा दो बस. अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिस, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको बाद में देखते हैं. अडॉप्टिंग द मिनिमम टिलेज, इज इट हेल्पफुल फॉर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर? यस, अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज. इसलिए तो जो रेसिड्यू बच गया था ना टिलिंग से, वो सारा निकल जाएगा. मिनिमम टिलेज. अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, चलो ये भी देखते हैं. यूजिंग क्रॉप रेसिड्यूज टू कवर द सॉइल मॉइस्चर, मल्चिंग.
adopting spatial and temporal crop sequencing and crop rotation. Adopting spatial and temporal crop sequencing, crop rotation. Crop rotation, crop sequencing में क्या होता है? So whenever you are having one type of crop, one type of intensive crop, and you want to use another intensive crop, okay, let's say wheat हो गया, उसके बाद में राइस डालना है, उसके बीच में एक और लेस इंटेंसिव क्रॉप डाल दो जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो जाए. Okay, so for example, pulses डाल दो. Pulses help in nitrogen fixation and it will balance the nutrient extracted. जो extract हुआ था उसको balance कर देगा. या same crop दोबारा डालने के पहले एक और crop लगाओ. That is what is the idea of crop rotation. Avoiding monoculture practice, is it part of conservation agriculture? कंजर्वेशन एग्रीकल्चर चल रहे हैं जहां पर हम वहां पर अब मोनोकल्चर अवॉइड करेंगे. Conservation agriculture doesn't talk about whether you can use traditional agriculture, modern agriculture, monoculture करो, commercial crop करो, indigenous variety use करो, ये कुछ भी नहीं बोलता है. Basically, it uses those methods which is helpful for the conservation of the properties of agriculture field. Soil का property को बचा के रखे, erosion कम करे, degradation कम करे. Even using monoculture practice also you can ensure there is a conservation of all of this. कर सकते हो. You cannot use it intensively. जो जैसे यूएसए में होता है ना, एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव मोनोकल्चर, सेम एक ही क्रॉप होगा साल भर, क्योंकि बार बार वही डालेंगे, वो गलत है. एट अ टाइम यू वांट टू यूज अ सिंगल क्रॉप, यू कैन यूज इट. ओके, सो फिर चेंज कर लो, बाद में चेंज कर लो, इट इज फाइन. द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो सपोर्ट, यू कैन ऑल्सो यूज कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप भी बना सकते हो. स्टिल यू कैन डू कंजर्वेशन एग्रीकल्चर. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू अवॉइड दीज टू. ओके, तो यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट था. बहुत लोग ये दोनों देख के, हाँ ये तो मोनोकल्चर नहीं करना है, ओके प्लांटेशन नहीं करना है, तो इसमें आंसर में नहीं होना चाहिए. फिर आके देखते हैं तो 1 2 3 4 5 तो आंसर में है ही नहीं है. ठीक है. It is not necessary that you have to avoid monoculture. It's not necessary that you have to avoid the plantation crops. कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी मोनोकल्चर कर सकते हो. Answer is C. With reference to agricultural soils, consider the following statements. I hope you are identifying the nature of the questions which are coming in agriculture. ये पकड़ना बहुत ज़रूरी है, because you can see that there is a totally different trend when you talk about the agriculture related topics in geography and agriculture related topics in environment. दोनों में तो agriculture related topics तो आएगा, but in geography you will read more related to the cropping condition, cropping pattern, कहाँ पर कौन सा क्रॉप रहता है. फिर एग्रीकल्चर, फिर इकोनॉमिक्स में भी एग्रीकल्चर आ जाता है, वहाँ पर तो मार्केट रिलेटेड होगा, ओके सब्सिडी रिलेटेड होगा, पॉलिसी रिलेटेड होगा. यहाँ पर एनवायरनमेंट में अलग तरीका है. एनवायरनमेंट में इट्स मोर अबाउट द इंट्रैक्शन, ओके सो फील्ड और सोसाइटी और द एनवायरनमेंट, वहाँ पर इंट्रैक्शन जो चल रहा है, वेदर इट इज पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, न्यू मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर विच हेल्प्स इन द बेटर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. ओके सो ओवरऑल ब्रिंगिंग सस्टेनेबिलिटी, दिस इज द फोकस एरिया यू नीड टू आइडेंटिफाई. यहाँ पर बहुत एमर्जिंग है, बहुत सारा करंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स आपको मिलेगा. ओके सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. With reference to agricultural soils, consider the following statements. A high content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity. ऐसा है क्या? अभी तो देखा था हमने, ऑर्गेनिक कंटेंट रखने से और अच्छा है. It's good for water holding capacity. Why will it reduce the water holding capacity? Soil does not play any role in sulfur cycle. Is it so? Soil has some role to play. Of course, soil के अंदर तो सल्फर रहता है ना. सो ऑर्गेनिक सल्फर जो हम बोलते हैं, इट इज पार्ट ऑफ द सॉइल ओनली.
सल्फेट्स वापस रिलीज होगा सॉइल के अंदर ही. सॉइल इज द मेन, रॉक का रोल कम होता है, सॉइल का तो मेजर रोल है यहाँ पर. जब डिकम्पोजिशन होगा सल्फर कंपाउंड्स गेट इनटू द सॉइल एंड सॉइल से ही फिर हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है एटमॉस्फेयर में. सॉइल हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. Irrigation over a period of time can contribute to salinization of some agriculture lands. Is it so? Okay, so wherever there is agriculture field, if you are doing continuous irrigation, what happens? The standing water gets evaporated, and during the evaporation, it will leave the salts behind here. Salts को ये छोड़ के evaporate होता है ना? Okay, for example, rice fields. The way we do rice cultivation. Okay, we keep the entire field flooded with water. पानी से पूरा flood करके रखते हैं. So why do we do that? Rice needs more water, तो stagnant water क्यों रखना है? Flowing water रखो. Why do we use this standing water? In standing water, weeds will be less. राइस के साथ में वीड्स नहीं आते. इफ एट ऑल यू हैव सीन राइस फील्ड में तो वीड्स नहीं होते. इमेजिन राइस प्लांट के साथ में वीड्स आना हो गया तो इतना मुश्किल हो जाएगा, हटाना मुश्किल. इसीलिए स्टैग्नेंट वाटर यूज करते हैं. यू पुट स्टैग्नेंट वाटर, ओनली राइस विल ग्रो, वीड्स विल नॉट कम. टू अवॉइड द वीड दे यूज द स्टैग्नेंट वाटर. फ्लड इरिगेशन मेथड यूज करते हैं. बट द नेगेटिव इज द वाटर गेट्स एवापोरेटेड बिकॉज राइस इज ए क्रॉप विच ग्रोज इन खरीफ पीरियड. ओके, हाई टेम्परेचर होना चाहिए उसके लिए. हाई टेम्परेचर की वजह से ये पानी एवापोरेट होते जाएगा. इट विल लीव द सॉल्ट्स बिहाइंड. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द कंटिन्यूअस एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स विल कॉज सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल. ये में आज सॉल्ट कहाँ से आ गया? नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो हैज सॉल्ट. फ्रेश वाटर के अंदर भी सॉल्ट होता है. ओके, 5 ppm तो होगा. ओके, सो ppt पार्ट्स पर 1000. कि फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर सॉल्ट बिल्कुल नहीं है, उसके अंदर भी सॉल्ट है. व्हेन यू एवापोरेट दैट इट विल आल्सो लीव द सॉल्ट्स बिहाइंड. ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दीस सॉल्ट्स विल accumulate in the soil and that causes soil salinization. That is one of the reason why Punjab and Haryana has banned rice transplantation before 15th of June. जून जैसे फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक कोई भी राइस ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे. व्हाट इज द मेथड ऑफ राइस कल्टिवेशन? चलो ये भी बताएं. तो राइस कल्टिवेशन कैसे करेंगे? पहले हम नर्सरी बनाएंगे. ओके, एक बहुत क्लोजली पैक्ड नर्सरी होगा. व्हाट इज दिस नर्सरी? नर्सरी इज वेयर द राइस सीड्स आर प्लांटेड एंड द सीडलिंग्स, जो छोटा छोटा प्लांट्स होता है ना, उसको हम ग्रो करते हैं. ओके, सो वील हैव द नर्सरी फर्स्ट. नर्सरी में जो प्लांट्स आएगा थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में यहां से उठा के वी विल ट्रांसप्लांट इनटू द ओपन फील्ड. दैट इज व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन. उस ट्रांसप्लांटेशन के टाइम में वी नीड टू हैव द स्टैग्नेंट वाटर कंप्लीटली. ओके, यू वुड हैव सीन द एग्रीकल्चर फील्ड पूरा ऐसे खाली रखते हैं. दे कीप द वाटर एंड इन दैट दे जस्ट कीप प्लांटिंग द राइस सैपलिंग. सीड से नहीं होगा, वो सैपलिंग ट्रांसप्लांट करेंगे. Okay, so during that you need to have the stagnant water. Earlier they used to have this rice transplantation in the month of April, May. Okay, so but during that time the temperature is usually higher. High temperature causes stronger evaporation. 1-2 महीने में जितना राइस कल्टिवेशन का पीरियड है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा. तो जिसके चक्कर में वो सॉलिनाइजेशन होना शुरू हो गया था. फिर इसीलिए द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हैड टू पास ए लेजिस्लेशन saying कोई भी ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे टिल द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जून. ओके, उसके बाद में कर लो, क्योंकि तब तक तो थोड़ा बहुत बारिश आने का शुरू हो जाता है, मानसून का भी चांसेस होता है. तो इट्स बेटर. ओवरऑल टेम्परेचर स्लाइटली डिक्रीजेस. इसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन क्या है? स्टबल बर्निंग. यस, बिकॉज यू हैव डिलेड द राइस ट्रांसप्लांटेशन, राइस हार्वेस्ट इज गेटिंग डिलेड एंड व्हीट सोइंग has to be done as early as possible. राइस हार्वेस्टिंग डिले हो गया, वीट सोइंग करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, दोनों के बीच में गैप कम है. यू विल स्टार्ट बर्न द स्टबल, लेफ्ट ओवर स्टबल, जो अभी हो रहा है आजकल. दिस इज द टाइम, अक्टूबर एंड इज द टाइम ड्यूरिंग विच द स्टबल बर्निंग हैपन्स, बिकॉज राइस हार्वेस्टिंग इज डिलेड बिकॉज ऑफ द डिलेड ट्रांसप्लांटेशन. Okay, so and wheat sowing, if you delay it, the production level will decrease.
एयर हैज टू बी लिटिल बिट मॉइस्ट. ओके, सो इसलिए उसको डिले नहीं कर सकते हो, वो डिले नहीं कर सकते हो तो इसलिए जला देते हैं लोग. स्टबल बर्निंग हैपेंस. देखो कहाँ से कहाँ तक लिंक है. सैलिनाइजेशन को अवॉइड के चक्कर करने के चक्कर में एयर पोल्यूशन हो रहा है. Irrigation over a period of time contribute to salinization of some agricultural land. This is right. Answer is C. Sorry, answer is B. 3 only. Sulfur cycle, of course, has an important role to play in the sulfur. So soil has an important role to play in the sulfur cycle. Okay, so even the plants take sulfur directly from the soil only, and animals take the sulfur from the plants. Okay, plants के लिए सल्फेट आयन्स जो चाहिए ना वो सॉइल से ही आता है. Agriculture soil releases nitrogen oxides into the environment जो अभी देखा है. Okay, so when you use excessive amount of nitrogen fertilizer, so the oxides of nitrogen which is present in the soil, so that will react and that will get released into the atmosphere. Cattle releases ammonia into the environment. Yes. Okay, cattle dung. Okay, so poultry industry releases reactive nitrogen compounds into the environment. Is that so? Poultry feed होता है ना, वो भी nitrogen rich ही होता है. Poultry field हो गया, poultry excreta हो गया, वो सारा नाइट्रोजन रिच होता है. एंड दे आर हाईली, दे यूज सो मच ऑफ एंटीबायोटिक, इतना सारा केमिकल यूज करता है ना, इट इज हाईली पोल्यूटिंग. सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ देम. इन नाइट्रोजन साइकिल को डिस्टर्ब करने वाला फैक्टर्स है. ओके, सेम चीज है हमने जो देखा था. Carbofuran methyl parathion phorate triazofos, totally current related. They are all pesticides. They were in news in that year, इसलिए क्वेश्चन आए हैं. अभी याद रखने का ज़रूरी नहीं है. डोंट ट्राई टू रिमेंबर दिस. ये तो बहुत बार ऐसे वाला सो तो न्यूज़ में आ जाएगा. इस साल में लास्ट 1 or 2 years में जो न्यूज़ में है उसको याद रखना. ओके, सो उस ईयर में क्या हुआ था, सडनली कुछ बहुत ऐसे अजीब सा पेस्ट आना शुरू हो गया था. यूजुअली इसको यूज़ नहीं करते, फिर अलो कर दिया था, लो कॉन्सेंट्रेशन में इसको यूज़ करना शुरू करो ऐसे बोल के अलो किया था इसलिए. बट ये बहुत हजार्डस केमिकल्स है. ओके, सो दे आर ऑल पेस्टिसाइड्स. आंसर इज ये. ओके, सो इट वाज इन दिस ईयर दे रिपोर्टेड दिस इन्फेक्शंस, इसके चक्कर में यूज़ करने के लिए अलो किया था. फर्टिगेशन बताइए, व्हाट इज फर्टिगेशन? Yes, irrigation plus fertilizer. बेसिकली हम इरिगेशन में क्या करते हैं, वी विल रिलीज द वाटर, पानी छोड़ते हैं. फर्टिलाइजर फिर उसके पहले या उसके बाद में अप्लाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप. सो बहुत बार क्या होता है, फर्टिलाइजर डालने के बाद में इरिगेशन किया तो वो इरिगेशन वाटर के साथ में ये भी निकल जाता है ना. जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजर का अब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाएगा. द अब्जॉर्प्शन ऑफ फर्टिलाइजर डिक्रीजेस, that will increase the consumption of fertilizers, that will increase the cost of agriculture also. एंड बहुत बार इसी के चक्कर में हम ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जांपल यूरिया इसलिए इतना ज़्यादा यूज़ होता है ना. सो देयर इज टू मच ऑफ यूजेज बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव फर्टिलाइजर, एक्सेसिव इरिगेशन. तो ये मेथड लेके आया था, इरिगेशन के साथ साथ में फर्टिलाइजर कर देते हैं. मतलब यू मिक्स द इरिगेशन वाटर विद द फर्टिलाइजर एंड यू रिलीज इट इन ए कंट्रोल्ड मैनर. अगर बहुत कंट्रोल तरीके से रिलीज करेंगे सो टू द रूट्स ओनली, तो वहाँ पर डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन होगा. इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है द फर्टिलाइजर शुड बी डिजॉल्व्ड इन द वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर ही यहाँ पर यूज कर सकते हैं. फ्लड इरिगेशन यूज नहीं कर सकते, रिमेंबर. ड्रिप इरिगेशन यूज कर लो या कंट्रोल्ड मेथड यूज कर लो, तभी ये फायदा होगा. इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द अल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर. यस,
ओके सो वही सॉल्ट अक्यूमुलेशन, क्योंकि फ्लड इरिगेशन भी हमने कम कर दिया, कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज कर रहे हैं ना। एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैप, बहुत लोग यहाँ पर फंस गए थे। थोड़ा सा टेक्निकल है, फॉस्फेट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, फॉस्फेट सॉल्युबल नहीं है, यू कैन नॉट यूज इट इन फर्टिगेशन। इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू द प्लांट्स अवेलेबल, यस, बहुत स्लोली ऑब्जर्व होगा ना। Reduction in the leaching of chemicals, that is the main idea. Okay, what is leaching? Okay, so absorption in the water, sorry, जो रेन वाटर उसको परकुलेट करते हैं नीचे तक लेके जाएगा, that is what is leaching. Okay, so reduction in the leaching of chemical nutrients, ground water contamination नहीं होगा, water bodies में ज़्यादा ऐड नहीं होगा. So answer is C, 1, 3 and 4 only. Okay, why this is wrong? Because phosphate is not soluble in water. देखो, this is how the fertigation is done. Drip irrigation के साथ में, drips के साथ में छोड़ देते हैं. Zero tillage जो हमने डिस्कस किया है उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया. देखो, sowing of wheat is possible without burning the residue of previous crop. That is the idea of zero tillage. Okay, so can you sow the wheat without tillage? Yes, you can do that. उसके लिए थोड़ा सा अलग सा मशीन यूज करना पड़ेगा. Okay, for example, happy seeder. Happy seeder सुना है? So there's this issue of stubble burning, right? Rice stubble हटाने हैं wheat sowing करने के लिए. वो क्यों stubble क्यों हटाने? क्योंकि नॉर्मल मेथड ऑफ वीट सोइंग डजंट रिक्वायर, मतलब ये उसके ऊपर जो रेसिड्यू नहीं होना चाहिए, पूरा के पूरा खाली जगह होना चाहिए. हैप्पी सीडर क्या करता है, तो इट विल सो द वीट इन द स्टबल एरिया इटसेल्फ. जहाँ पर स्टबल है, राइस रेसिड्यू है, उसी के ऊपर ही उसको पूरा सॉइल के अंदर दबा के फिर उसके ऊपर वीट सोइंग हो जाएगा. एंड इट एक्ट्स एज ए गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर जैसे काम करता है जो राइस स्टबल लेफ्ट ओवर होता है. So wheat sowing कर सकते हैं, we can use without burning the residue of previous. Without the need of nursery for rice sapling, direct planting of seed is possible. Yes, direct sowing method, direct seeding method. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे होगा? जहां पर सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा हो तो कार्बन को पकड़ के रखा है, कार्बन कंटेंट ज्यादा है. Answer is D. So this is the basic idea of no tillage. If you can see here, यहाँ पर आपको रेसिड्यू मिलता है. देखो, previous crop का रेसिड्यू as it is बचा हुआ है. Without removing that, you have put the next crop. Yes, because of lack of awareness regarding that. Okay, lack of awareness and it requires specific method of agriculture. थोड़ा बहुत specifically करना पड़ता है, उसके लिए training चाहिए. कुछ जगह में है, बहुत जगह में है, अभी आना शुरू हुआ है. इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर कौन कौन सा है बताए, मतलब ये नॉन पोल्यूटिंग टाइप कौन कौन सा है. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज गुड. व्हाट हैपेंस थ्रू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन? सेम सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विल नॉट गेट रिमूव्ड कंटिन्यूअसली. ओके, कभी कभी वो लेग्यूमिनस प्लांट्स भी आ जाएगा जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होगा. इट्स ऑलवेज गुड टू हैव ए डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स. लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा. टेंसियोमीटर क्या होता है? व्हाट इज टेंसियोमीटर? इट्स ए इंस्ट्रूमेंट टू चेक द सॉइल मॉइस्चर लेवल. सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर है वो चेक करने के लिए यूज़ करता है. एंड दैट इज़ वेरी गुड, जिसकी वजह से वाटर यूजेज कम होगा. क्या हम ये नहीं सोच के पानी डालते रहेंगे, चलो जितना होगा उतना डाल दो ऐसे बोल के. टेंसीमीटर यूज़ किया तो हमें पता चलता है कितना मॉइस्चर है, कितना कब पानी रिलीज करना है. इट इंक्रीजेज द एफिशिएंट यूजेज ऑफ वाटर. ये भी अच्छा है. व्हाट अबाउट वर्टिकल फार्मिंग? ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बहुत लोग इसको मार करके आए थे. वर्टिकल फार्मिंग इज नॉट एफिशिएंट. यस, वाटर ज़्यादा यूज़ करते हैं, केमिकल्स भी ज़्यादा यूज़ करते हैं,
or in fact it is considered to be source of greenhouse gases, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी चलता है, पंपिंग वम्पिंग होता है. ओके, सो और बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं. इट विल रिड्यूस द स्पेस बट इज़ नॉट 100% इको फ्रेंडली. सो इसी के चक्कर में ये गलत हो गया. द आंसर इज 1, 2 and 3 ओनली. ओके, सो एवरीथिंग इज गुड. ओके, एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस होगा, वाटर थोड़ा बहुत कम होगा. ओके, सो बट यू नो दे यूज टू मच ऑफ एंटीबायोटिक, केमिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी. इसके कंटेक्स्ट में थोड़ा सा इश्यू है. वर्टिकल फार्मिंग. व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वर्टिकल फार्मिंग? हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स. ओके, बेसिकली सो जहाँ पर कम स्पेस में हम वर्टिकल स्टैक्स के थ्रू एग्रीकल्चर करने की कोशिश करते हैं, ऑल ऑफ दीज आर वर्टिकल फार्मिंग ओनली. ठीक है, और एरोपोनिक्स भी आता है. विदाउट एनी काइंड ऑफ सॉइल मीडियम, इज जस्ट हैविंग इन द एयर सस्पेंडेड करके उसको प्लांट्स को ग्रो करना. दैट इज व्हाट इज एरोपोनिक्स. ठीक है, सो जस्ट गिव मी 5 minutes ऑफ ब्रेक. ओके, सो विल कंटिन्यू. Does the vast syllabus of general studies for the UPSC prelims overwhelm you to initiate your preparation for the civil services examination? Is your apprehension and self-doubt coming in the way of your success in joining the civil services? Comprehend your preparation for UPSC Prelims 2025 with the fast-track course targeting general studies with innovative curriculum, revision and mentorship. Starting from 19th November at 1 p.m, the course offers coverage of UPSC GS Prelims subjects, dedicated mentorship support and guidance for performance maximization, access to PT 365 classes for current affairs preparation, sectional mini tests for regular assessment and performance, personalized student portal to access study material, access to live and online classes. Enroll today and make prelims your stepping stone to proceed to the UPSC mains. A stronghold over current affairs is your way to succeed in the UPSC Civil Services examination. Brace yourself and get detailed coverage of relevant news both nationally and internationally. With the monthly current affairs revision program starting from 26th October at 5 p.m. Enroll today and elevate your current affairs knowledge with comprehensive coverage of current affairs compiled through relevant sources such as the Hindu Indian Express, Economic Times, PIB Yojana and others. Expert support and personalized mentoring. Comprehensive assessment through MCQs and mains-oriented questions. Next question on biochar. Biochar क्या होता है? What is this biochar? What is the use of biochar? Biochar is something which is produced from the coal and few other material. उसको प्रोसेस करते हैं. फॉर एग्जांपल जो कोल को हम सिन गैस में कन्वर्ट किया तो उससे बायोचार भी निकलता है. गैसिफिकेशन होकर गैस निकल जाएगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना, तो वो सारा मटेरियल बायोचार हो जाएगा. Biochar is used in various applications. It can be used as part of growing medium, yes, because of it rich organic content है ना, तो वो growing medium जैसे काम करता है. जो vertical farming जो हम बात कर रहे थे ना उसमें. And you can grow it, you can use it as a soil itself, as a replacement to soil. It's a part of the growing medium. It promotes the growth of nitrogen fixing microorganisms, yes. Okay, so it helps in the microbial activity. Biochar is a part of growing medium. It enables when it is used as a part of growing medium, it enables the growing medium to retain water for longer time. It holds the water for long time. Basically जो left over matter है तो वो होता है, तो उसको हम बहुत जगह में यूज़ कर सकते हैं. एग्रीकल्चर में for biogas production, livestock industry, sanitation, cosmetics, medicine के बहुत जगह में यूज़ करते हैं. कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ करते हैं. ठीक है, so answer is D. So biochar and its
uses, the method of production, that is important. So when you use biomass through pyrolysis, it produces majorly syngas, synthetic gas. Okay, syngas के साथ में एक liquid type निकलता है, that is bio oil, and solid leftover matter is what is called as biochar. Permaculture. What is permaculture? Permaculture क्या होता है? Okay, very easy to remember, permanent agriculture. Any agriculture method which is sustainable, which is capable of conserving the characteristics of the soil. Okay, conservation method को follow करता है. All those methods are permaculture. Sustainable agriculture basically. Okay, so which can be done permanently. Okay, so and not unsustainable. Permaculture farming discourages monoculture practices, but in conventional chemical farming, monoculture practices are predominant. I know that is right. Conventional chemical farming can cause increase in soil salinity, but occurrence of such phenomena is not observed in permaculture farming. That is also right. Okay, basic idea तो वही है. Conventional chemical farming is easily possible in semi-arid region. Chemical farming कहाँ पर करोगे आप semi-arid region में? फिर अदरवाइज तो हमारा राजस्थान MP गुजरात में ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाता. It is not possible. Conventional chemical farming is not possible in semi-arid regions, but permaculture is not easily possible in such regions. Easily possible, it is possible. Permaculture यहाँ पर possible होता है. Sustainable practices using indigenous variety of seeds, using the crop rotation, using mulching, okay, so using so local variety of seeds, local water, not depending heavy on irrigation. ये सारा permaculture ही है. Okay, permanent agriculture practice. Practice of mulching is very important in permaculture, yes, because it helps in the moisture conservation, nutrient retention. It is not necessarily used in conventional agriculture. The answer is 1, 2 and 4. 3 नहीं है. ठीक है? So permaculture is basically an approach to land management that adopts arrangements observed in flourishing natural ecosystems. Permaculture can be understood as a growth of agriculture ecosystems in self-sufficient and sustainable way. Okay, all such methods we call it as permaculture. फिर ऑर्गेनिक और परमाकल्चर में क्या डिफरेंस है बताइए. ऑर्गेनिक फार्मिंग परमाकल्चर में कुछ भी यूज कर लो, सस्टेनेबल रखो, कंजर्वेशन रखो, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करना है. ऑर्गेनिक में खाली ऑर्गेनिक इनपुट्स ही डालेंगे. ओके, सो इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर परमाकल्चर? Some of the methods can become, but if you are using organic inputs from various sources, हर यहाँ पर फॉर्म में नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो, बाहर से खरीद के लेके आके डाल रहे हो, ओके, so वो तो परमाकल्चर नहीं होगा, वो सस्टेनेबल नहीं है ना. So the ideas when you say organic, that means organic inputs. वो सस्टेनेबल भी हो सकता है, अनसस्टेनेबल भी हो सकता है. परमाकल्चर इज बेसिकली ट्राइज टू रिटेन एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को बचाने का कोशिश में रहते हैं परमाकल्चर. क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच, ये 2021 में न्यूज़ में था, इसलिए क्वेश्चन आया था, अदरवाइज तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ. इट्स ए इनिशिएटिव था. सो बेसिकली क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेड बाय क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम. The project is carried out under the consultative group on international agriculture research headquarters in France. International crop research ICRISAT जो है इंडिया का, it is one of the research centers. ये तीनों सा ही था, तो उस टाइम में न्यूज़ में था प्रोग्राम, इसलिए क्वेश्चन है. अभी तो it's not very important. ये बताइए, ये तो डायरेक्ट एंड सिंपल है, अभी डिस्कस किया था मैंने. Which one of the most is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? Because of the flood irrigation method. हम फ्लड इरिगेशन करते हैं ना, तो वो वहाँ पर स्टैग्नेंट वाटर की वजह से डिकम्पोज होके वहाँ से मीथेन रिलीज होता है.
Okay, so along the root system, the continuous release of methane happen. One of the largest production of methane comes from the rice fields. And उसके साथ में हम इतना सारा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डालेंगे ना, वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी रिलीज करता है. ठीक है. So methane is a short-lived gas, and methane is highly potent in terms of greenhouse effect. Nitrous oxide भी greenhouse effect है. System of rice intensification. As an alternative to the flooding method of agriculture, so there are two ways. नॉर्मल फ्लड इरिगेशन के थ्रू करते हैं, वो हर जगह में वही होता है. उसके अलावा दो मेथड है. वन इज सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो ओडिशा में यूज होता है. ओके, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन. सेकेंड वन इज डायरेक्ट सीडिंग मेथड. ओके, राइस में दो स्टेप है ना. वन इज नर्सरी में सीडलिंग होगा, फिर ट्रांसप्लांट करेंगे, दैट इज वन मेथड. डायरेक्ट सीडिंग में क्या करेंगे, नर्सरी वर्सरी नहीं करेंगे, डायरेक्ट फील्ड में ही सीडिंग होगा. फिर वीड्स आ जाएगा, वहाँ पर थोड़ा सा ट्रेनिंग चाहिए. You need to release the controlled release of water. Weed हटाना है रेगुलरली, थोड़ा बहुत weedicide यूज़ करना है, बट वाटर रिक्वायरमेंट कम होगा. ओवरऑल वाटर कंजम्पशन कम होगा, पेस्टिसाइड कंजम्पशन भी कम होगा. ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रेंड वे में करना पड़ेगा. डायरेक्ट सीडिंग मेथड वॉज यूज इन पंजाब हरियाणा आफ्टर द कोविड और आफ्टर कोविड के टाइम में ना, जब लेबर कम हो गए थे तो तब थोड़ा बहुत कोशिश किए थे. इससे बहुत अच्छा बेनिफिट्स भी है. ओके, सो बट वही है, थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगा. सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इज समथिंग लिटिल बिट डिफरेंट. ये भी थोड़ा सा ट्रेंड मेथड है, स्पेसिफिक मेथड से ही होगा. ओके, सो दिस व्हाट इज सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन. हियर ऑल्सो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू स्टेप. नर्सरी होगा, फिर ट्रांसप्लांटेशन होगा. बट नॉर्मली क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते करते समय ना, सो वी विल ट्रांसप्लांट द राइस इन बल्क, ऐसे ग्रुप में. Okay, you would have seen in the agriculture field, ऐसे बल्क में लेके जाएंगे, ऐसे लगाते जाएंगे, ट्रांसप्लांट करते जाएंगे. इन वन स्मॉल बल्क देयर विल बी मल्टीपल प्लांट्स. यहाँ पर थोड़ा सा डिस्पर्स करेंगे. देयर विल बी मोर गैप बिटवीन द राइस सैपलिंग. दे विल नॉट बी टू क्लोजर, बट ओवरऑल इफ यू सी इन द फील्ड देयर इज मोर इंटेंसिफाइड राइस. उसमें क्या करते हैं, वी विल मेक, नॉर्मली जब राइस ट्रांसप्लांट होता है ना, इफ दिस इज द फील्ड, you are making it in terms of bundles करते हैं. Okay, they grow in bundles like this. राइस इंटेंसिफिकेशन में क्या होगा, इस बंडल में थोड़ा थोड़ा सा गैप होगा, बट अदरवाइज ओवरऑल गैप विद इन द फील्ड इज लेस, लाइक दिस. दे आर स्लाइटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. इफ यू सी ओवरऑल राइस प्लांट्स इन द फील्ड हैज इंक्रीज्ड, बट देयर इज हायर गैप बिटवीन देम. ठीक है. एंड बहुत ज़्यादा इतना पानी एक ही लेवल में स्टैग्नेंट करके नहीं रखेंगे. वी विल रिलीज इट इन ए कंट्रोल्ड मैनर. ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मैनुअल लेबर लगाएंगे, वीड्स हटाएंगे, और यहाँ पर भी जो जिस टाइम में फर्टिलाइजर डालना है, जिस टाइम में पेस्टिसाइड डालना है, वो सारा एक स्पेसिफिक मेथड में ही डालेंगे. दिस व्हाट इज सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन. व्हाट आर द एडवांटेजेस हियर. ओके, सो वन इज हियर इन नॉर्मल मेथड you will wait till the sapling come to a little bit higher level. थोड़ा बहुत बड़ा होने के बाद में ट्रांसप्लांट करेंगे, ये छोटे में ही कर देंगे. ओके, जिसकी वजह से देर आर हायर जर्मिनेशन रेट, हायर सक्सेस रेट. जैसे थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर बहुत जगह में वो ट्रांसप्लांट करने के बाद में सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट नहीं होते. देर दे डेवलप स्ट्रॉन्गर रूट. ओके, स्ट्रॉन्गर रूट होगा. ओके, सो बेटर प्रोडक्टिविटी होगा, बेटर ग्रोथ होगा. बट वाटर का कंजम्पशन, इफ़ यू डोंट यूज इट केयरफुली, उसका वाटर कंजम्पशन ज़्यादा हो सकता है. इसलिए कंट्रोल्ड वे में करना पड़ेगा. ओके, सो सीडलिंग्स गेट ट्रांसप्लांटेड एट मच यंगर एज. ओनली सिंगल सीडलिंग इंस्टेड ऑफ हैंडफुल सीडिंग. देखो, सिंगल सीडिंग होगा. प्लांट्स आर स्पेस्ड वाइडर अपार्ट, ओके, इन स्क्वायर पैटर्न. इंटरमिटेंट वाटर एप्लीकेशन टू क्रिएट वेट एंड ड्राई कंडीशन इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस फ्लड इरिगेशन. rotary weeding control methods to promote the soil erosion. continuously check करना पड़ेगा. and increased use of organic fertilizers. ठीक है, this is what is system of rice intensification. इसी के लिए वो गैस का वो मिला था. what are the advantages here? reduces the seed requirement. how will it reduce the seed requirement? yes, it will reduce the seed requirement because normal nursery में ज़्यादा seed होगा, फिर ट्रांसप्लांटेशन में लॉस होगा, वो सब तो यहाँ पर कम हो जाता है. ओके, इट विल रिड्यूस द सीड रिक्वायरमेंट. रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन बिकॉज वाटर इज नॉट ऑलवेज स्टैग्नेंट.
रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, पंपिंग का भी कम हो गया, ओवरऑल मैनुअल लेबर थोड़ा सा ज़्यादा होता है. ऑल थ्री आर देयर. आंसर इज डी. अदर बेनिफिट्स, मोर ग्रेन पर फर्टाइल टिलर, मोर टिलर पर प्लांट, इंक्रीज एंड बिगर हिल्स. ओके, सो मतलब जो जहाँ से वो प्लांट्स आता है ना उसी को ही हिल्स बोलते हैं. लार्जर ग्रेन्स, मोर वेल फिल्ड फर्टाइल panicles which from the tillers that that a plant puts out, healthy and strong root system below the ground for each plant. ओके, ओवरऑल बेनिफिशियल, बट ये थोड़ा सा ट्रेन तरीके से करना पड़ेगा, इसीलिए वाइडली यूज़ नहीं हो रहा है. बट बहुत जगह में इसके बारे में भी अभी ट्रेन अवेयरनेस आ रहा है. हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए. According to UN World Water Development Report 2022, India extracts more than a quarter of the world's groundwater withdrawal each year. Is that so? More than a quarter of the world, मतलब वर्ल्ड में जितना ग्राउंड वाटर विड्रॉल हो रहा है उसमें 25% से ज़्यादा इंडिया में ही हो रहा है. ऐसा है क्या? हो सकता है. चलो देखते हैं, सेकंड वन देखते हैं. इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन ए क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सैटिस्फाई ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स ऑफ ऑलमोस्ट 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. फर्स्ट स्टेटमेंट को सेकंड स्टेटमेंट के अंदर ही दे दिया दोबारा. ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर देन ए क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर, यहाँ पर भी वही रिपीट किया है, इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन ए क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर रिपोर्ट ही. मतलब ये स्टेटमेंट, ये फैक्ट है. ओके, दोनों तो गलत नहीं हो सकता है ना. अगर ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा. बट यहाँ पर आपको चेक करना है ये रिपोर्ट सही है या नहीं है, ये रिपोर्ट के हिसाब से बोल रहे हैं या नहीं है. ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो. इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, वाई? To satisfy the drinking water and sanitation needs of almost 18% of the world's population. 18% of the world population of the world, 18% of the population of the world is there in India. ये तो है ही. बोल रहे कि इतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर इसलिए हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं टू फुलफिल द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. इज दैट सो? विच इज द मेजर कंज्यूमर ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया? एग्रीकल्चर. Not only groundwater, even surface water. 85 to 88% of the water consumption goes to agriculture only. हम इतना ज़्यादा ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के लिए एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे. इट इज़ वी आर एक्सट्रैक्टिंग फॉर एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. सेकेंड स्टेटमेंट गलत है. सेकेंड स्टेटमेंट गलत है तो आंसर मिल जाएगा आपको. फर्स्ट ऑटोमेटिकली सही है बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन विच इज दोनों गलत है. सेकेंड इज रॉन्ग इन सी ओनली. ये रिपोर्ट के हिसाब से ये आया था. इनफैक्ट इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर वाटर दैन कंबाइंड वाटर एक्सट्रैक्शन ऑफ यूएसए एंड चाइना. सेकेंड एंड थर्ड में यूएसए चाइना है ना, उससे कंबाइंड से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हम करते हैं. ओके, यू कैन सी दिस इज द एक्सट्रैक्शन. इंडिया 251 किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर. ओके, सो चाइना का 112, यूएसए का 112. फिर है पाकिस्तान पास में. 2024 का क्वेश्चन. यू कैन सी द सडन चेंज इन द नेचर. एग्रीकल्चर में थोड़ा बहुत ऐसे आ रहा था, सडनली थोड़ा बहुत ऐसे आ गया. तो ये कौन सी पी फैमिली है? पी फैमिली, देखो पी फैमिली पूछा है कि दैट्स वाई इट मेक्स इट ट्रिकी. अगर लेग्यूमिनस पूछ लिया तो इजी था. ऑल ऑफ देम आर लेग्यूमिनस. ओके, सो पी फैमिलीज थोड़ा बहुत ट्रिकी था. बायोलॉजी है, दिस मोस्टली मोर क्लोजली रिलेटेड टू बायोलॉजी दैन एनवायरनमेंट एज सच. ऑल ऑफ देम आर पी फैमिली ओनली. Okay, all of them are pea family. They are commonly called as legume, pea, beans. Okay, so ये सारा तो वही है, but they are not asking leguminous whether it is pea or not. Pea family तो biology related, जिनको पता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था. टर्म्स इन न्यूज. नेट मीटरिंग बताइए. नेट मीटरिंग, वाटर मीटर, पाइप्ड नेचुरल गैस, सीएनजी किट, यूज ऑफ सोलर एनर्जी. बहुत ट्रिकीली सेट किया ऑप्शन को. लोगों को लगता है वाटर मीटर होना चाहिए, मीटर. द आंसर इज ये. So wherever there is a rooftop production, and कुछ जगह में ये जो कुसुम स्कीम भी आया था, कुसुम स्कीम याद है?
एग्रीकल्चर रीजन में सोलर प्लांट इंस्टॉल करो, एनर्जी प्रोड्यूस करो, देन यू सप्लाई टू द ग्रिड, right? So in many locations it is encouraged that the people install a bigger solar panels and produce more energy. अपना कंजम्पशन से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर लो, जो एक्सेस आएगा हम खरीद लेंगे, ऐसे डिस्कॉम विल परचेज इट. ठीक है, बहुत जगह में ये चल रहा है. दे आर प्रोड्यूसिंग एंड दे आर सप्लाइंग टू द डिस्कॉम ऑल्सो. बट ये थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्मली नहीं होगा. देयर विल बी मेनी टाइम ऑफ द ईयर वेयर यू विल हैव टू टेक द सप्लाई फ्रॉम डिस्कॉम. यू आर बेसिकली टेकिंग द सप्लाई फ्रॉम डिस्कॉम ऑल्सो. वो भी, उसका भी मीटर अलग सा चल रहा है. ओके, सो एंड यू आर सप्लाइंग टू द डिस्कॉम ऑल्सो. बट जब ये इसके लिए, जिसके लिए ये जो कॉस्ट डालेंगे, द कंजम्पशन विच यू आर टेकिंग फ्रॉम डिस्कॉम, उसके लिए तो चार्ज तो लगेगा ना. सो ड्यूरिंग दैट यू हैव टू रेड्यूस दिस सप्लाई विच यू हैव मेड टू द डिस्कॉम. दैट इज व्हाट इज नेट मीटरिंग. ऐसे वाला अलग सा मीटर आता है, तो जो चेक करते हैं आपने कितना सप्लाई किया है, कितना सप्लाई लिया है, वो नेट के लिए चार्ज होगा आपके लिए. दैट इज द आइडिया ऑफ नेट मीटरिंग एसोसिएटेड विद द सोलर एनर्जी. जो ज़्यादा प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है, जितना प्रोड्यूस किया है, जितना सप्लाई किया है, उसको रिड्यूस करके कंजम्पशन को चार्ज करेंगे. They measure the solar power exported to the grid and the consumer is given credit for the exported power, reducing the bill. Net metering. Greenhouse gas protocol was basically उस time का था international accounting tool for government and business leader to understand and quantify and manage the greenhouse gas emission. उस time में था greenhouse gas protocol, method of assessment of greenhouse gas emissions. Which of the following statement best describes social cost of carbon? बताइए social cost of carbon क्या है? It is a measure in monetary value. क्या measure करता है? Long term damage done by a ton of carbon dioxide emission in a given year. मतलब एक साल में उसकी वजह से क्या क्या डैमेज हो सकता है? क्या क्या डैमेज हो सकता है बताइए? एक तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज होगा, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हो सकता है. ओके, कहीं पे भी एग्रीकल्चर क्रॉप लॉस होते जा रहे हैं, और वाटर अवेलेबिलिटी कम कर सकते हैं. यू विल हैव टू एक्सट्रैक्ट मोर वाटर, यू विल हैव टू वॉक फॉर लॉन्गर डिस्टेंस टू कलेक्ट वाटर. ओके, फिर डिजास्टर्स आएगा, साइक्लोन ज़्यादा होगा, ड्रॉट ज़्यादा होगा, फ्लड ज़्यादा होगा. ओके, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट भी हो सकता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो भी जिसकी वजह से इकोनॉमिकली लॉस होते जा रहे हैं. 1 टन ऑफ एक्स्ट्रा रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वजह से इतना कितना सारा हो सकता है, वो इकोनॉमिक कॉस्ट को क्वांटिफाई करके बताएंगे सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन. इट इंक्लूड्स एवरी टाइप ऑफ लॉस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स. इट विल बेटर हेल्प द पॉलिसी मेकर्स एंड द डिसीजन मेकर्स टू अंडरस्टैंड. ओके, तो कैसे बेटर मेजर्स लेना है उससे पता चलता है. ब्लू कार्बन तो पता है, व्हाट इज ब्लू कार्बन? कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम. ओके, सो नॉट द बायोमास. Forest biomass is green carbon. Carbon content in petroleum and natural gases gray carbon. Okay, atmosphere में तो नाम नहीं दिया है शायद हमने. मियावाकी मेथड बताइए. Mini forest in urban area. It's like fast forest. Okay, so it's a Japanese method of growing forest इन ए वेरी स्मॉल एरिया ऑफ अर्बन रीजन. अर्बन रीजन में जगह का ही कमी होता है ना, छोटा छोटा जगह होता है. उतना छोटा जगह में इंटेंसिवली सारे तरीके का डाल दो मिक्स करके, अच्छे से फर्टिलाइजर डालो, अच्छे से पानी वानी डाल दो, तो इट विल स्टार्ट टू ग्रो फॉरेस्ट विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. 2-3 ईयर्स में वो बहुत अच्छे से ग्रो होते जाएगा. सो इट गिव्स ए प्रॉपर ग्रीन कवर. दैट इज व्हाट इज मियावाकी मेथड. अर्बन फॉरेस्ट, फास्ट फॉरेस्ट, फास्टली ग्रोइंग होना चाहिए, इंटेंस केयर के थ्रू होगा. बहुत जगह में आ रहे हैं. ओके, सो इन मेनी प्लेसेस दे हैव ट्राइड दिस. ग्रीन वॉशिंग तो अभी बहुत इजी हो गया. बताइए व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग? फॉल्स इन्फॉर्मेशन. फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू शो समथिंग विच इज नॉट इको फ्रेंडली एज इको फ्रेंडली. इको फ्रेंडली नहीं है, हाईली पोल्यूटिंग है या नॉर्मली है, कोई भी उससे बेनिफिट नहीं है, फिर भी उसको दिखाओ. कैसे? क्लेम करो, जस्ट क्लेम दिस इज मेड फ्रॉम द इकोनॉमिक एनवायरमेंटली फ्रेंडली रिसोर्सेस, इससे पोल्यूशन नहीं हुआ है, कुछ भी डेटा नहीं है, दिस इज नॉट बैक्ड बाय डेटा एनीथिंग, बस क्लेम करो. और वर्स बताओ,
पैकेजिंग ऐसे बनाओ, उसके ऊपर पेड़ वेड़ का पिक्चर लगाओ, ग्रीन कलर का पैकेजिंग डाल दो, लोगों को लगेगा ये इको फ्रेंडली है. सो ऑल ऑफ दिस इज ग्रीन वॉशिंग. Okay, it is not environmentally friendly, but it is just being portrayed for the consumers so that it will attract them. Okay, उसको ज़्यादा लोग खरीदेंगे. That is what is greenwashing. Okay, conveying false impression that a company's products are eco-friendly. Okay, that is what is greenwashing. इसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप आ गया. देखो, ग्रीन हशिंग, ग्रीन रिंजिंग, ग्रीन लेबलिंग, ग्रीन लाइटिंग, वही है. सो अलग अलग तरीके का मेथड है. 100 million farmers तो इनिशिएटिव था, उस साल में इनिशिएटिव था. तो इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स द फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो, नेचर पॉजिटिव एंड एम टू इंक्रीज द फॉरेस्ट रेजिलियंस. ठीक है. So that covers all the sections. So we have covered all the sections comprehensively, giving enough time. So those who have seen this, all these 4 sessions, you know what you have to do next. Okay, so align your preparation of environment accordingly. Okay, so ये जो हमने सीखा है, इसके थ्रू एक ट्रेंड एनालिसिस हमने आइडेंटिफाई किया होगा. ओके, वी हैव आइडेंटिफाइड इन ईच सेक्शन द नेचर ऑफ क्वेश्चंस. ये याद रखना ज़रूरी है. ओके, लोग देखते भूल जाते हैं. लाइक यू विल सी दिस वीडियो, यू विल फॉरगेट दिस. इट हैज़ नो यूज, नो वैल्यू एट ऑल. ट्राई टू रिकॉल whenever you are reading a particular section. Try to see इसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे लास्ट 10 years में. You can come back and go through this. एक रफ ग्लैंस कर लो, आपको पता चल जाएगा. Then you read that particular section. ओके, सो जब आप प्रिपेयर करोगे ऐसे, तो वो ऑटोमेटिकली ओरिएंट हो जाओगे. यू विल ओरिएंट योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एग्जाम. ठीक है. सेकंड, एक ट्रेंड भी आप एनालाइज कर सकते हो, हाउ द ट्रेंड्स आर चेंजिंग इन ईच ऑफ द सेक्शन. ओके, सो फॉर एग्जांपल एनर्जी में आप देखा तो पूरा करंट रिलेटेड ही है, एंड इन द लास्ट 1 or 2 years इट हैज बिकम मोर ऑफ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड. सो गिव मैक्सिमम एम्फेसिस ओवर देयर. ठीक है. सो और and in some cases you will find older trend, newer trend, दोनों को prepare कर लो just to be on the safer side. For example, biodiversity है. तो earlier there were questions related to national parks, wildlife sanctuary, उसके ऊपर अभी कम हो गया थोड़ा बहुत, और legal terms में जा रहे हैं. दोनों को prepare करो, ready रखो. Okay, don't neglect any of these. 10 year करने का यही फ़ायदा है कि जैसे भी आ जाए you will be ready. You know these are the different ways of asking question. And third, you can very clearly see that current affairs plays a huge role. So whether it is static part or any other area, current affairs तो must है. Okay, so try to prepare current affairs thoroughly for environment. Okay, current affairs का role तो बहुत ज़्यादा है. Try to do it on daily basis. Okay, so best है कि जो भी environment related news आ रहे हैं, just make a simple note. Okay, so just add it in your static notes, और current affairs का अलग notes बनाए तो भी ठीक है, चलेगा. ठीक है. सो एंड कनेक्ट विद जियोग्राफी, कनेक्ट विद मैपिंग, एंड कनेक्ट विद स्लाइटली बायोलॉजी ऑल्सो. थोड़ा बहुत इससे कनेक्ट करने से आपको बेटर ईजिली आंसर्स मिल सकते हैं, ईजिली याद भी रहेगा ये कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई एंड. हैव एनी डाउट्स? ठीक है. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट.